Hello students, description of topic narration has already been started. Now process how to change direct into indirect and how many parts of tense are under changing process. First it is to be done, then after the parts changed into indirect will be directed by myself. Now 6 parts of tense are changed into indirect speech from direct speech. You know, tense contains 12 parts. 4 parts of each: present, past and future. Now 12 parts are not under changing process. Only 6 parts of tense are changed into indirect speech. Now a theory is given 1/4, 1/3 and 2/4. Under mathematical calculation, grammar contains the 3 theories. 1/4 means 1 indicates present tense. 1 indicates present tense. So 4 parts of present tense change into all of 4 parts of past tense: present indefinite, past indefinite, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect and present perfect continuous, past perfect continuous. It means the given formula shows the changing process from direct to indirect speech. Each of 4 parts of present tense change into 4 parts of past tense. Now here come to the formula given here. 1/4 means all of 4 parts of present tense change into all of 4 parts of past tense. Now second 1/3, it means we have come in past tense. First part of past tense means past indefinite change into 3, past indefinite change into past perfect and past continuous change into past perfect continuous. So now this formula 1/4, 1/3 and 2/4, it means 6 parts of tense is changed here from direct to indirect speech. Past indefinite in past perfect and past continuous in past perfect continuous. Now here description is given as I have discussed previously, that past indefinite in past perfect, past continuous in past perfect continuous. 4 parts of future tense and 2 parts of past tense cannot be changed. 6 part is changed. ऐसा कभी मैंने बताया, टेंस के 12 भागों में 6 भागों का तो हमने परिवर्तन कर दिया. प्रेजेंट के 4 पार्ट को पास्ट के 4 में चेंज कर दिए, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में कर दिया. अब 2 पार्ट बच गए पास्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन दोनों का नहीं होता है. साथ ही 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर आल्सो आउट ऑफ चेंजिंग प्रोसेस. फ्यूचर टेंस के 4 भाग इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका परिवर्तन नहीं होता है. होता क्या है? शैल चेंज इनटू शुड एंड विल चेंज इनटू वुड. बस शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज करते हैं. रेस्ट ऑफ द चेंजिंग
of sentence from direct to indirect contains the definite theorem, the definite gospel given in the process changing from direct to indirect. ये 6 पार्ट चेंज नहीं होते हैं, ये वैसे के वैसे रह जाते हैं और 6 पार्ट का चेंज करते हैं. बट हाउ? रिपोर्टेड स्पीच, पहले मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब एज यूजुअल रख दिया जाता है. रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है. कैसे? अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के काल में हम परिवर्तन करते हैं. देखिए यहाँ हमने दिया है, एज यू नो दैट रिपोर्टिंग वर्ब कैन नॉट बी चेंज, देन रिपोर्टेड स्पीच कम्स अंडर चेंजिंग प्रोसेस. According to the rule given, changing process of reported speech depends on the tense of reporting verb. अब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो होता कहाँ है? रिपोर्टेड स्पीच में. वेरी डीप एंड डिफिकल्ट चेंजिंग प्रोसेस आई शैल डिस्कस टुमारो. नाउ we are under a short description, initial knowledge of narration. But tomorrow we shall discuss on the deep studical theory of narration. ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो नरेशन चैप्टर है बहुत ही क्लिष्ट चैप्टर है, इसको ठीक से समझने समझाने की जरूरत पड़ती है. अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं. अब कल मैं बताऊंगा कि चेंजिंग प्रोसेस क्या है, कैसे चेंज होता है, कौन कौन से थ्योरी चेंज करने के समय अप्लाई होता है. अभी यहाँ दिया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है. कैसे? तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाले क्रिया के काल के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं. कल मैं बताऊंगा आपको कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैन बी चेंज. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जैसे ही सज, ही विल से, तो रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसे उठा करके रख दिया जाता है. But if reporting verb is in past tense, the verb of reported speech change according to the verb of reporting verb. ये कल डिस्कस करेंगे हम लोग. Reported speech can be changed according to the tense of reporting verb. ये कल चर्चा होगी. आज मैं इतना तो आपको बता ही दूं कि रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के काल में परिवर्तन होता है. रिपोर्टेड स्पीच पे आने वाले प्रोनाउन में परिवर्तन होता है. और एक चीज़ आप ध्यान दें, ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी भाग में जब हम लोग चलेंगे तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है. स्टेबल एंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन ग्रामर एंड नो चेंज इन नाउन. संज्ञाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है. नाम जो भी होगा वैसे का वैसे उठा के रख देते हैं, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी चीज़ का नाम हो. चेंज होता है किस में? तो हम चेंज करते हैं प्रोनाउन में. सब्जेक्ट के रूप में आने वाले रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में हम परिवर्तन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नरेशन. नाउ इट इज डेफिनेट that under changing process some various changing items, articles will come one by one, and it is necessary, essential to know each and every part, each and everything in changing process.
ये परिवर्तन के क्रम में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सबको एक एक करके ध्यान देंगे, तब हम वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। नरेशन में जो सेंटेंस का परिवर्तन होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वक्ता जो बोलता है सीधे उसको हम चेंज करके बोलते हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, सेंटेंस के मोड में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं जिस प्रोसेस के थ्रू हमको गुजरना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुमारो वी शैल डिस्कस on this topic, how to change in tense, how to change in pronoun one by one from assertive to optative, exclamatory, assertive sentence, assertive के दो पार्ट, affirmative, negative, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इसमें सारे भागों का परिवर्तन होता है। तो वन बाय वन हम लोग सारे भागों का परिवर्तन देखेंगे, किसमें कौन सा रूल लागू होता है। सब में अलग अलग तरीके से परिवर्तन किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो फॉर योर एडवांस knowledge. Thanks.